Hello everyone, welcome to iExamB. Today I have Mr. Abhishek Jha. Abhishek is a very interesting personality. He has cracked some 8-9 exams and he has done BTech in Marine Engineering from Indian Maritime University, Kolkata. He is topper of his batch. And now he has cracked IBPS PO, CMAT, MAT 99.9 percentile and CDS exam 2 times. FCAT exam 3 times, RRB PO, he cleared prelims, mains and Maharashtra CAT 98.52 percentile, and in CAT exam also he got 96 percentile. Now he aspire to crack something more. We will come to that discussion. Thanks Abhishek for spending time with us. And Abhishek has also taught in coaching institute. He has been a faculty. He knows about how to guide a student also. So Abhishek, over to you. Please suggest what shall be done, what not shall be done, and maybe for different topic, different subjects. Sir, thank you so much. It's a pleasure coming to iExamB and thank you for inviting me. I would share my strategy subject-wise and then I'll focus on prelims and mains, and then at the end I'll go for the interview session. That personal interview mein kya karna hai. First, sir, I'd like to start with quant because generally people are afraid of maths. And I would share one story that till 8th I was a failure in mathematics. Like not a failure, I never crossed 60% marks. And after that my dad said ki karat abhyas se jarmati hot sujan. So I practiced maths so much ki after that I have never seen my score going below 95 in any of the exams that I gave. From 12th I got 98 and then all engineering semesters I scored above 90. तो मैथ्स का जो डर है वो आप प्रैक्टिस से ही भगा सकते हो. तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स में बात करूंगा. प्रीलिम्स में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. मैथ्स के लिए यू टेक एनी स्टैंडर्ड बुक, एनी रेफरेंस बुक, जैसे फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा. आई रेफर टू दैट फॉर प्रीलिम्स. और जिनका बेसिक कमजोर है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक उठा के पहले स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना. उसके बाद आप प्लीज ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक राजेश वर्मा कर सकते हैं. और इससे देयर आर 2 sections in that, level 1, level 2. So that will help you for both pre and mains, and along with that will also help you for FCAT, CDS, SSC, CGL and all these exams. Maths में after completing every section, I used to go to the sectional tests. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको सेक्शनल क्विजेज मिलेंगी, तो मैं वो करता था चैप्टर वाइज. और जैसे 15 मार्क्स का दिया या 30 मार्क्स का दिया, उसमें अगर 80% मार्क्स के मुझे ऊपर आए तो मुझे लगता था हाँ, नाउ आई हैव गॉट अ कमांड ओवर दिस टॉपिक, आई विल प्रोसीड ऑन टू द अदर टॉपिक. ऐसे आप मैथ्स कर सकते हैं. रीजनिंग में आई वुड से दैट यू फॉलो अनदर स्टैंडर्ड बुक बाय जयकिशन प्रेम किशन, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो डॉक्टर आर एस अग्रवाल का वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, बट दैट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. उसको आप शायद 1 महीने में खत्म ना कर पाओ. तो आप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो, जैसे जो टॉपिक आपको साइलोजिज्म नहीं समझ में आ रहा, इनइक्वालिटीज नहीं समझ में आ रहा आप. एंड पजल के लिए देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय बीएससी पब्लिकेशन, अ मैजिकल बुक ऑन पजल्स. ये पजल मैंने इससे सॉल्व किया था. इसमें यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स लाइक फ्लोर बेस्ड पजल, circular arrangement, linear arrangement, all type of puzzles you can find here. And after this, coming on to English, I've been born and brought up in Calcutta, and I come from ICSE, ISC background, and I've been a debater all throughout my life. Debate, extempore, ये सब मैं करता आया हूँ बचपन से. तो English was always good, but still, even if English is good, like you have to study, right? Reading comprehension. आजकल reading comprehension बहुत ज़्यादा पूछते हैं, RC. चाहे कैट हो, मैट हो, बैंक पीओ. मैंने ये सारे एग्जाम्स इसलिए एक साथ क्रैक किए और दिए क्योंकि ऑलमोस्ट सबका पैटर्न सेम है. BARC, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट, ये सब में सिमिलर है. तो इसके लिए अरुण शर्मा की बुक आती है VARC, बट वो थोड़ी हाई लेवल पे हो जाएगी. मेंस के लिए आप अरुण शर्मा की VARC की बुक रेफर कर सकते हो. प्रीलिम्स के लिए यू कैन रेफर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी, उससे आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं. एंड आफ्टर दैट RS अग्रवाल की प्रैक्टिस की आती है सेट, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इंग्लिश के लिए मैं क्या करता था, एक्चुअली सर मेरे को टाइम कम मिलता था क्योंकि मैं टीचिंग जॉब में था. तो 6-7 घंटा, 8 hours आई यूज्ड टू टीच. एंड इफ यू आर टीचिंग फॉर 8 hours, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 4 hours एट लीस्ट टू टीच एट दैट लेवल. तो whenever I was traveling, like suppose if I'm in the auto, if I'm in the bus, or I'm getting 30 minutes time for lunch, or the students are doing something and I'm just getting a 5-minute break, तो मैं मोबाइल खोलता था, ऐप खोलता था, फटाफट एक क्विज सॉल्व कर दिया. वर्ड स्वैप, फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर्स,
ये फटाफट मैं क्विज सॉल्व कर देता था. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी. एक डायरी और पेन में रखता था. सपोज एक सिनोनिम मुझे नहीं पता चला, आई डिड अ मिस्टेक इन द पैसेज, या कोई टोन, आजकल दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द आयरनी इन द पैसेज, ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ टोन नहीं पता चलता था तो मैं लिख लेता था सैटायरिकल टोन कहाँ कहाँ यूज होता है. तो ऐसे मैं डायरी बना के रखा था. सिनोनिम, एंटोनिम, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई एरर स्पॉटिंग में गलती हो गया, ऑफ ऑन में मैं समझ नहीं पाया, तो आई यूज्ड टू मेक अ डायरी ऑफ दैट. एंड फर्स्ट थिंग, जैसे ही मैं घर पहुंचता था, उस डायरी को मैं एक नोट्स का कॉपी बना के रखा था इंग्लिश का, और उसको प्रॉपर विकिपीडिया से सर्च करके या उस फिल इन द ब्लैंक्स के एग्जांपल्स ढूंढ के पहले आधे घंटे में उस कॉपी को फिल करता था. और एग्जाम से 3-4 दिन पहले मैं आई वेंट थ्रू दैट कॉपी, दैट नोट्स विच आई मेड. एंड ये तो प्रीलिम्स हो गया. प्रीलिम्स आप अगर जितना कॉन्सेप्ट्स पे rather than shortcut tricks, I will say that focus on concepts. People follow shortcut tricks, but I would say that shortcut tricks are not meant for every question. Right. And the IBPS is a very transparent and a very highly professional organization. उनको भी ट्रिक्स पता है. तो आजकल जो वो क्वेश्चंस बनाते हैं, the questions that they make are difficult and are at a different level. अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में वो टाइम एंड वर्क जोड़ देंगे. This is what they are doing at the prelims level, I would say. अब जैसे if they are giving a question on menstruation, वो right circular cone में थोड़ा सा frustum दे देंगे, और उसके बाद they will also add a sphere और hemisphere, and उससे they will tell you that ये wire bent हो गया, ये square में बदल गया. So all these questions they are combining. जो एक पहले आज से 10 साल पहले एक सिंगल क्वेश्चन आता था, वो 4 सिंगल क्वेश्चन बन के आज एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है. ये लेवल आपको देखना पड़ेगा. लोग कई बार गलती करती है कि प्रीवियस ईयर पेपर ले लेते हैं. दे लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर, बट दे लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर दैट हैज कम 20 years back. But that is not the trend now. If you look since SBI PO 2017, the IBPS and SBI examinations have gone way beyond our imagination, especially in mains level. बहुत टफ होता है. तो इसके लिए you need to brush up your concepts. आपका prelims is all about speed and accuracy. कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट में आपका मेंस आपका कॉन्सेप्ट. प्रीलिम्स में 20 मिनट्स में यू हैव टू डू 35 क्वेश्चन में. व्हेन यू गो फॉर द मेंस तब 35 मिनट्स 60 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं. मतलब टाइम 4 गुना मिल जाता है आपको, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी 40 गुना बढ़ भी जाती है. आई वुड से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. और आप तैयारी जब स्टार्ट करो, फोकस ऑन मेंस फर्स्ट. मेंस लेवल पे तैयारी स्टार्ट करो, और फिर प्रीलिम्स के 10-15 दिन पहले मॉक्स लगाना चालू कर दीजिए और स्पीड मैथ्स पे ध्यान दीजिए. क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ऑटोमेटिकली योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. एंड 10-15 days before the exam, now you give mock test for prelims and do speed maths like simplification, approximation, data analysis के छोटे छोटे sets like bar graph, pie chart, radar graph and all these things. तो इससे आपको दोनों का प्रिपरेशन साथ में हो जाएगा. बिकॉज बैंकिंग एग्जाम्स आर वेरी फास्ट. आफ्टर प्रीलिम्स यू डोंट गेट टाइम फॉर मेंस. तो ये सब मैंने किया, इससे प्रीलिम्स निकला. फिर आफ्टर दिस मेंस में 2 सेक्शन ऐड हो जाते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस के लिए सर जैसे मैं 2-3 वेबसाइट्स को रेफर करता था. आपका जो सर मंथली कैप्सूल्स आता है पीडीएफ्स, उसको मैंने रेफर किया. तो वो मैं कैप्सूल्स को वीकली पढ़ता था थोड़ा थोड़ा करके, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था मैं नोट्स बनाता था. या मैं जैसे सैटरडे इफ आई एम स्टडिंग द कैप्सूल, तो संडे मॉर्निंग आई एम वेकिंग अप एंड आई एम रिवाइजिंग. और कौन सी वेबसाइट आप रेफर करते थे, बता सकते हैं? आई रेफर्ड ग्रेड अप, आई एग्जाम बी एंड बैंकर्स अड्डा. आई एग्जाम बी के आई रेफर्ड मंथली करंट अफेयर्स एंड दिस थिंग. एंड सर आपका जो 300 वीडियोस वाला सेशन आया था फॉर आरबीआई ग्रेड बी, दैट आई ऑल्सो रेफर्ड. उसको मैं हर दिन सुन के मैं अपने नोट्स में लिखता था. और जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो मुझे लगा हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो उसी वक्त मैं पॉज करके आई वुड गो टू द विकिपीडिया. उससे जितना थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट होता था तो वो भी मैं लिख लेता था रिविजन के टाइम के लिए. जो टाइम मिला, प्रीलिम्स का रिजल्ट 1 नवंबर को आया था, मेंस वाज ऑन 30th नवंबर एंड 24th नवंबर को मेरा कैट था. तो फिर कैट पे मैंने उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि एक ही बात है, मेंस के लिए दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है. उन 20-25 दिनों में, और हाँ 9 तारीख को मेरा आरबीआई ग्रेड भी था, 9 नवंबर को. तो मैं उस 9-10 दिन में मैंने सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ा, और उसके बाद वापस आया. आफ्टर आरबीआई ग्रेड भी 9 दिन मैंने जनरल अवेयरनेस पढ़ा था. 3-4 महीने का करंट अफेयर्स को सिर्फ उसी पे टाइम दिया, ना क्वांट पे, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे और मैं पहले ही क्वांट रीजनिंग की तैयारी इंग्लिश की कर चुका था.
And after that, after 10th November, after RBI Grade B happened, last के 15 days I focused on current affairs, static GK, governors of states, ministers, wildlife sanctuaries and all these things, जो general studies का portion होता है. And notes बनाना बहुत जरूरी है, I would say. आप अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज करो, जो पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा है ना, स्पेशली उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली इवन इफ यू आर राइटिंग ना, when that thing if that thing comes in the exam ना, your mind will strike, अच्छा ये याद नहीं था, इसको अगले दिन सुबह उठ के मैं लिखा था. लिखी हुई चीजें, सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं. करेक्ट. इसीलिए मैं दिन में टाइम निकाल के आधा एक घंटा आपके वीडियोस या कोई भी यूट्यूब पे वेबसाइट्स आते हैं बहुत सारे, मैं सुनता था चीजों को. सुनी हुई चीजें आज भी कुछ चीजें याद हैं. अभिषेक, एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, यू हैव बीन ए फैकल्टी ऑल्सो, तो जितना आप सुनते हो वो तो याद रहता ही है, बट यू हैव बीन टीचिंग, तो आपको तो उसका भी बेनिफिट मिला होगा, बिकॉज बीइंग बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा. क्योंकि मान लीजिए अगर सर मैं जैसे अगर मैं डेटा एनालिसिस में प्रैक्टिस कुछ करके जा रहा हूँ, तो एक्चुअली माई कोचिंग, आई वुड नॉट नेम द कोचिंग हियर, बट माई कोचिंग गेव मी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट यू कैन मेक द वर्कशीट ऑन योर ओन. तो जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते थे या जो मैं प्रैक्टिस करता था और जो थोड़े डिफरेंट सेट के लगते थे, या मैं क्विज सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कुछ अच्छा दिखा, मैं सबको मार्क करके मैं वही वर्कशीट बनाता था. तो इन अ वे जब मैं उस वर्कशीट को क्लास में बच्चों को देता था या उनके साथ जब डिस्कस करता था, तो यू कैन से आई वुड लाइक आई वाज रेदर रिवाइजिंग. एंड आप जब कोई किसी चीज को पढ़ाते हो ना, तो मैं खुद नोटिस किया हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुझे एक्चुअली पहले इतना अच्छा नहीं था, जितना पढ़ाते पढ़ाते अपने आप अच्छा हो जाता है. यस, बिकॉज़ उसमें क्या होता है, बहुत बार ना यू आर अप्लाइंग एनफ प्रेशर इन योर माइंड, क्योंकि आपको भी पढ़ाना है लोगों को. बाय नेचर माइंड इज ऑल्सो कॉम्प्लेसेंट, लेजी. लेकिन किसी को पढ़ाना है तो उस समय हम सोचते हैं कि इसको कैसे समझाऊं. हाँ, तो जैसे सर मैं एक एग्जांपल दूंगा. एक बार मैं जेई का क्लास ले रहा था, तो आई वाज टीचिंग लिमिट्स. लिमिट, अब बचपन में 11th में मुझे कभी लिमिट्स ना, मतलब एक्चुअली ऑल्दो जेई वही निकाल लिया, बट कभी लिमिट्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. फिर वंस आई वाज टीचिंग ना, खुद से मैंने एक बरमूडा ट्रायंगल वाला एग्जांपल दे दिया, या मैंने एक पॉइंट बना दिया कि लिमिट है कि आप उस चीज तक जा रहे हो बट आप कभी पहुंच नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहां पे या तो वो चीज इन्फिनिटी हो जा रही है या टूट जा रही है. जैसे फिर यही चीज सोच के मैंने बरमूडा ट्रायंगल दे दिया कि आप राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हो ए पॉजिटिव, लेकिन आप बरमूडा ट्रायंगल की सतह तक जा रहे हो, उसके बाद तो प्लेन डूब जा रही है. जो भी ऐसे सारे एग्जांपल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं. करेक्ट. जब मैं पढ़ाता हूँ, और फिर जब मैं क्लास के बाद, अच्छा यार मेरा कॉन्सेप्ट तो और तगड़ा हो गया, ऐसा हो गया. तो चीजें मतलब सबकॉन्शियसली पढ़ाते पढ़ाते हो जाती है, तो ये काफी बेनिफिट हो रहा है. नो, वेरी राइटली यू हैव सेड कि अगर फेज 1 की तैयारी है तो इट इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, लेकिन आपका मेंस नहीं निकलने वाला है अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो. एंड यू हैव ए गुड वर्क एक्सपीरियंस. I will come to that question later कि you were in a very good company, you were in a Japanese company, why you quit and you want to become a government officer. But before that, how was your interview experience? Because you must have aced the interview. Interview, sir, it went well. I was not able to answer, I think, only one question. And I was not able to exactly answer that one question. Although I answered it, but that was not fully correct, maybe 70%. And in the interview, sir, if I consider my score, it was around 75 or 76 this time, out of 100. So that is a relatively good score in IBPS. And how much your total score overall? My total score is, sir, 46 point something exact. Okay. Mains mein I got near about 90, and interview mein I got near about 70. Right. And actually, I forgot to mention in the introduction, Abhishek is joining Indian Bank. Indian Bank now. Yes. So, sir, interview experience, I would say that my interview went quite smooth, and I would give IBPS 5/5 in this, because I have seen that as compared to other organizations, I'm not demeaning any other organizations, but IBPS is truly a fast and a well-based professional organization in everything. जो इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ ना सर, वो काफी स्मूथ था. एंड माय इंटरव्यू वाज इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज भोपाल. तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था. आफ्टर दैट तो आई वेंट टू सी माई सेंटर एंड एवरीथिंग, जो भी होता है. फिर माई इंटरव्यू वॉज इन द मॉर्निंग, 8:30 वॉज द रिपोर्टिंग टाइम. तो मैं 7:30 बजे ही चला गया. आई वॉज लकी इनफ कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज के एक फैकल्टी वहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. तो ही गाइडेड मी, लाइक ही टोल्ड मी दैट दे विल टेस्ट. He told me that he was an ex-serviceman and he was a specialist officer.
Okay. तो he gave me a very good thing, like he told me कि don't be nervous, जो आपका नॉलेज था वो प्रीलिम्स और मेंस में वो चेक कर चुके हैं. अगर आप Absolutely. 10 क्वेश्चन में आप 5 का आंसर दो, 5 का नहीं भी दोगे ना, बट यू नीड, दे विल सी जब आप 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप वो स्ट्रेस कैसे हैंडल कर रहे हो. Yes. Bank PO is a public dealing job. It is a profit making organization. You have to bring business to the organization. He told me that they will see how pleasant you are. उसमें हो, you are a branch manager, suddenly 20 लोग आके आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं या आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा है. आप उस टाइम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे, आपका स्ट्रेस लेने का क्षमता. You need to be a shock absorber. This word he told me, that you need to be a shock absorber. Shock absorber. And शिप पे भी हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बहुत होता था, तो बेसिकली यू नीड टू बी अ शॉक एब्जॉर्बर Yeah. in any government class 1 officer level job, because you are a responsible person there. Yes. You have to answer, you are answerable to the higher authorities. So first I went inside, DV was very fine. They even offered tea, coffee, biscuits and all, and we were made to sit in a lounge. So already officer वाला feeling तो आ ही चुका था उस time. And so once I went inside, now I will straight away move on to the questions. उन्होंने मेरे से एक भी HR क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये पूछा कि आपका सेलिंग एक्सपीरियंस कितना था, आप कितने दिन सेल किए, शिप मतलब शिप पे क्या देखने को मिला, एंड आपने जॉब क्यों छोड़ा. उसके बाद इट वाज बेसिकली अ रैपिड फायर राउंड. 15 मिनट तक कंप्लीट रैपिड फायर चला. they were asking me, like, first question was this thing, about the graduation stream, like fluid hammering, critical speed range, thermodynamics के कुछ questions थे. ये चीज उन्होंने पूछा. graduation stream से there were 5 questions, 4 or 5. After that, the panelist, he asked me about RBI के functions. He asked me a very minute question, that which bank is called the bank of issue. But generally Bank of issue. That is RBI. RBI is called the bank of issue because RBI का, that we have Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private RBI Limited. issues currency. Yes. Right, yeah. So that is called bank of issue. Now people generally don't know this. और ये बहुत छोटा चीज है, मतलब इसको लोग इग्नोर कर देते हैं. Yes. तो दे आस्क्ड मी बैंक ऑफ इशू एंड आई वाज लकी इनफ कि मैं जब ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था भोपाल, तो मैं अपने साथ पीडीएफ रखा हुआ था, तो उसमें मैंने पढ़ा था और मैं जानता था सर एक कुछ चीजें कॉमन है जो इंटरव्यू में पूछेंगी. आप बैंकिंग सर्विस में जा रहे हो तो आरबीआई के बारे में जानना दैट इज कंपलसरी. तो मैंने आरबीआई को बहुत अच्छे से स्टडी किया था. उसके पहले गवर्नर कौन थे, उसके कहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैलकाटा हेडक्वार्टर्स कब ये हुआ, उसके 5-6 सेक्शंस हैं जो उसे बताता है कि इट इज कस्टोडियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए अलग सेक्शन है. सेंट्रल गवर्नमेंट का कस्टोडियन है, उसके लिए अलग सेक्शन है. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं, हाँ, बैंकर टू बैंक्स क्यों बोलते हैं, ऐसा बहुत सारे सेक्शंस हैं. तो मैंने कम से कम 5-6 पन्ने का नोट्स बनाया था आरबीआई पे और उसको मैं बहुत ही अच्छे से करके गया था. एंड वाज लकी इनफ दैट द फर्स्ट बैंकिंग क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज ऑन आरबीआई. So this bank of issue वाला thing, they asked me why RBI is called lender of last resort. Then they focused on to NPA. NPA is very common question nowadays because banks are going through it. Yes. तो NPA में पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि doubtful assets, loss assets को classify करो. मैंने simple single definition दिया. And after that they told me that what is NPA in terms of agriculture sector. Okay. इसमें मैंने एक्चुअली मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था, मैंने PSL बता दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. आफ्टर दैट करेक्टेड मी एंड टोल्ड मी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ NPA इज कैलकुलेटेड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. तो उस पर मैंने पढ़ा था सर कि शॉर्ट सर्विस क्रॉप्स होते हैं, लॉन्ग सर्विस क्रॉप्स होते हैं. शॉर्ट सर्विस के लिए 2 टर्म होता है, लॉन्ग सर्विस के लिए 1 टर्म होता है, ऐसे कुछ होता है. वहाँ पे क्रॉप जैसे नॉर्मल एमपी तो 3 महीने बाद हो जाता है, 90 डेज नॉर्म से है, बट वहाँ पे क्रॉप सीजन से है. अब अगर आपने गन्ना उगाने के लिए लोन दिया है, अभी गन्ना तो 3 महीने में हार्वेस्ट नहीं होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू क्लासिफाई दैट लोन एज एनपीए इज नॉट राइट. सो not right. So I gave this answer in terms of crop season. They were satisfied. Then they asked me NDTL, net demand and time liabilities. They asked me the difference between wholesale price index and consumer price index. And उसमें they asked me a very minute question कि consumer price index कितने दिन में होता है और कौन publish करता है, wholesale price index कब आता है और कौन publish करता है. And फिर दे आस्क्ड मी इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन के थोड़ा वो अंदर जाके मुझसे पूछे हेडलाइन इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन. बहुत डिटेल्ड एंड वेरी मतलब इन डेप्थ क्वेश्चंस टू यू इन द इंटरव्यू. हाँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दे ग्रिल्ड मी, बट आई वाज लकी इनफ कि मैं सब पढ़ के गया था, मैं सब नोट्स बना के रखा था. इनफैक्ट मैं बोलूंगा जनरल अवेयरनेस के मैं जो भी 17-18 क्वेश्चंस करके आया, और
जो भी मैं इंटरव्यू में आंसर दे के आया, सारे क्वेश्चंस में नोट्स जो मैं बनाता था उसी के अंदर से थे. इट वाज नथिंग न्यू. तो ये जो नोट मेकिंग हैबिट मेरी बचपन से है, जेई के टाइम से है, तो ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए. मैं भी सजेस्ट करता हूँ एस्पिरेंट्स को कि आप नोट बनाओ. जितने नोट्स बनाओगे उतना लिखी हुई चीजें आपको याद रहेंगी, तो आपका कमांड बढ़ेगा. And last question they asked me that what is the overdraft facility and what is ANBC. Okay. Adjusted net bank credit. हाँ. तो अभी मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा कि why you are interested in government job. You had a very good private sector job also. But उससे पहले how iXambi has helped in your preparation? Sir, your videos are really helpful and motivating. I used to go through it and all these RBI के पहले सर जो आपने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस एंड ऑल, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए भी. एंड जो आपके करंट अफेयर्स कैप्सूल थे सर, दैट वर लाइक टू द पॉइंट and very relevant. And the best thing about that capsule was it was applicable to all the exams. And I gave FCAT also. So FCAT के पहले I attempted 3 mock tests from iXambi. My mock test score were 197, 199 and 201. And in this year FCAT I am getting 204. So almost similar, on the similar lines. Okay. So iXambi has really actually mock test भी दिए क्या, because mock test में we make lot of effort. I wanted to know your experience. Yes sir, mock test was almost similar. तो मैंने जितने एग्जाम्स दिए ना, my score was या तो 2-3 नंबर ज्यादा आया है mock test से. Okay. I would say that mock test was 5% difficult in the actual level and only 5%. And वो थोड़ा सा होना चाहिए ताकि एग्जाम में जाके आप थोड़ा सा ease out हो जाओ. Right. एंड आप मॉक टेस्ट डिफिकल्ट देखते हो तो आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ थोड़ा और अच्छा प्रिपेयर करें, तो वो आपको बूस्टअप करता है. Interesting. So अभी now coming to this question, so you have a good job and maybe the job that connects with your graduation, but you have quit that and you aspire to become a banker and you have been a faculty also. What kind of things you are looking in your career? करना क्या है? सर पर्सनल रीजंस के कारण मुझे जॉब तो छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ साल सेलिंग करूंगा, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप को स्टेबल करके फिर आरबीआई, यूपीएससी, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ की तैयारी करूंगा. बट सिचुएशंस हमेशा सर जैसा आप सोचते हो सिचुएशंस वैसा नहीं होता. एंड मैन आर द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस. आपको परिस्थिति अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा. तो जब मैं आया तो मैं सोचा कि अब मैं और क्या अच्छा काम कर सकता हूँ. अभी क्योंकि सर अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में होंडा या टाटा को ज्वाइन करता तो शायद मुझे उतना अच्छा टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए. तो इसको मैं सोचा चलो पढ़ाना, मैं सर क्लास 9th से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो समवेयर डाउन द लाइन पढ़ाना मुझे अच्छा भी लगता था. और पढ़ाना एक ऐसा चीज है ना सर, माय ब्रेन इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग. जैसे एक ऐसा टाइम हो गया था बैंक पीओ से पहले, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ सर, कोई इफ अ कार इज क्रॉसिंग मी एंड कार में अगर 2351 लिखा हुआ है, देन आई वुड मल्टीप्लाई 23 into 51. मैंने कहीं 41 देख लिया तो हाँ 41 स्क्वायर 1681. ये मैं अपने ब्रेन को हमेशा कैलकुलेशंस में रखता था. और आप दिन में 8-10 घंटा पढ़ा रहे हो, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग, योर ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग. इसमें जंग नहीं लगने देना है, डोंट लेट इट रस्ट. तो मैंने ये सर्विस ज्वाइन किया फैकल्टी वाला. एंड आफ्टर दिस सर गवर्नमेंट एग्जाम सर आज के डेट में इन दिस आई विल से दैट इन दीज अनसर्टेन टाइम्स ना, government job is the most certain thing that can happen to you. Right. And once you are into a government sector, at least your life is going to be certain and sure. Now sir, you see Boeing has announced that they will remove 12,000 employees. Sir, Boeing is such a big core company for aerospace and aeronautical engineering, but अगर वो 12,000 employees हटा सकता है तो फिर कोई भी. You can't say. At least even if the government banks merge, they will not remove their employees. Yes, that is for sure. Yeah. That is for sure. Correct. No doubt. Yeah. Government job का sense of security and plus अब मैं बैंक मैनेजर से मिला भी हूँ. वो जो केबिन के बाहर लिखा रहता है डेप्यूटी मैनेजर, वो और वो अंदर जाने में सर थोड़ा साहस भी मतलब लगता था. वो एक अलग सर मतलब अच्छा है बैंक पीओ का जॉब भी है. If you can understand what I am trying to describe. Yes. No, absolutely. And entering through IBPS PO provides you an opportunity to rise in your career. As I keep on saying, all CMDs of public sector bank, they started their career as a PO. Bank PO gives you a very good career opportunity. Of course, there are work, you have a target, you have to do business, but still, it's a public sector job. Many times people complain a lot about pressure in bank PO job.
but at the end of the day, no bank PO is fired from the job. Yes, that is very That you have to true. understand. If you working in a private sector, despite of you doing good job, you know there are situations when company is also helpless, right? So Yes. you have work, but you have at the same time you have a lot of career growth, and you have Yes, sir. job security. And also, sir, you have immense opportunities to learn because यहाँ से RBI, NABARD, SEBI, SIDBI वहाँ तक का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है. हाँ. So you Yeah, will aspire, you will prepare for these exams also. Sir, I like it's a childhood dream to work for Reserve Bank of India and at least try to go to the post of DG or executive director. Great. It's a childhood dream. Good. Happy to know that. Any closing remarks you want to give, Abhishek? This has been a very, very delightful session. Yes, sir. I would say that, sir, the life of curve is not straight, sir. Like the curve is most of the times down and sometimes up. So when it is down ना, you should try making it up. And when it is up, मतलब जब आपका लाइफ में अच्छा समय चल रहा है, तब उस वक्त आप जितना अपॉर्चुनिटीज आए, जितना आए उसका आप फायदा उठाओ. लाइक अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस, अगर आप एक जनरल ग्रेजुएट हो या एक इंजीनियरिंग जो भी आप ग्रेजुएट हो, तो उस आपके लेवल और रेंज में जो एग्जाम्स आता है ना, आप प्लीज भरिए. क्योंकि जनरल एग्जाम्स इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, यही 4 सब्जेक्ट हैं. थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है. CGL हो या PO हो, तो आप सारे एग्जाम्स दो. कब कहाँ किस्मत आपको ले जाए, यू डोंट नो. Right. तो ऑलवेज एम एंड कभी रुकना नहीं है. लाइफ में ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया ना, आप सुबह उठते क्यों हो? क्योंकि मुझे ये करना है, ये करना है. जिस दिन ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, उस दिन आप उठना छोड़ दोगे. Yeah. ऑलवेज फॉर हायर थिंग्स. These are very, very good thought and very practical ideas. And I would like to close this session by repeating what you said in the beginning, your father's word, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. So thank you, Abhishek, and hope it will be very helpful for other students. Thanks for your time. Thank you so much, sir.